LHDC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Akhund, Honorable Executive Councillor for Information, LHDC Kargil, Engineer Funsok Tashi, worthy Deputy Commissioner and CEO LHDC Kargil, Shrikant Balasaheb Suse, Joint Director Information, Ladakh, Imtiaz Kacho Saab, Assistant Director Information, Raza Ali Abidi, President Press Club Mohammad Hussain Khalu, members of Press Club of Ladakh, media persons and staffs of DIPR Kargil. Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's an honor that we are gathered here to celebrate the National Press Day. Before proceeding the session, I request the Assistant Director Information, Raza Ali Abidi, to welcome all the dignitaries with traditional khatak and mementos. Kindly facilitate the Honorable Chairman, Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Akhund. Honorable Executive Councillor, Information, Engineer Funsok Tashi. Worthy Deputy Commissioner Kargil, Shrikant Balasaheb Suse. Joint Director Information Ladakh, Imtiaz Kacho Saab. Thank you. National Press Day is celebrated across the country every year on November 16 to honor the essential role of a free and responsible press in society. It was on this day in 1966 that the Press Council of India began its operations as a moral watchdog to ensure that the press maintains high standards and is not unduly influenced or threatened. The day not only celebrates the achievements of the press, but also reinforces the responsibility it carries in building a more informed and transparent society. The theme of this year's event is Changing Nature of the Press, reflecting the evolving dynamics of media landscape. I request the Assistant Director Information, Raza Ali Abidi, to deliver a few words for welcome and gratitude to the guests and participants. Today's Honorable Chief Guest, Honorable Chairman and CC LHDC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Akhund Sahab, Guest of Honor, Honorable Executive Councillor, Janab Engineer Funsok Tashi Sahab, Deputy Commissioner Kargil, CEO LHDC Kargil, Janab Shrikant Balasaheb Suse sir, Joint Director DIPR Kargil, Kacho Imtiaz Sahab, President प्रेस और हमारे members of media fraternity, distinguished guests and team DIPR. A very warm good afternoon, salam, jule and namaskar. It's my great privilege to extend a warm welcome to all of you on this special occasion as we come together to celebrate National Press Day, a day that underscores the significance of a free, independent, and responsible press in our democracy. Today, we honor the critical role that the media plays in shaping public opinion, fostering accountability, and safeguarding the principles of justice and transparency. This day is a testament to the Press Council of India, which has consistently upheld the ethos of press freedom and ensured that the media remains a pillar of our democracy.
To our tireless journalists, editors, and media professionals, we celebrate your courage, dedication, and unwavering commitment to bringing the truth to light. In an era marked by rapid technological evolution, the challenges you face are immense, ranging from misinformation and digital disruptions to maintaining credibility in a fast-paced. It's our honor today to have our Honorable CC Saab, Honorable EC Saab, DC Sir and Joint Director with us. Dear sirs, your presence here reflects your commitment to the importance of a free press and its role in nurturing vibrant democracy. We eagerly look forward to your insights and words of wisdom. As we commemorate this occasion, let us also take a moment to reflect on the responsibilities that come. Let us continue to work hard in hand to preserve the ideals of truth, fairness, and accountability that define our nation. Once again, welcome, and let us together make the National Press Day an inspiring and memorable one. I will conclude with two couplets. कलम की नोक से रोशन चिराग होते हैं, कलम की नोक से रोशन चिराग होते हैं, सच्चाई के सफ़र में कुछ भाग होते हैं। हक़ के सफ़ीरों को सलाम करते हैं हम, हक़ के सफ़ीरों को सलाम करते हैं हम, जो वक्त के अंधेरों में चिराग होते हैं। Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Executive Editor, Voice of Ladakh, Saeed Hashim Rizvi, to express his views and opinions on this occasion of National Press Day. काबिल इज़्ज़त एहतराम चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र आखून साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंजीनियर पुंचोक टाशी, डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत बाला साहब सूसे, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यूटी लद्दाख इम्तियाज़ काचो साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर करगिल इंफॉर्मेशन करगिल रज़ा अली आबिदी, प्रेस क्लब करगिल के सदर हुसैन खालू, प्रेस क्लब के मेंबरान और DIPR के अरकान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आज शहादत बीबी दो आलम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के मौके पर आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। मैं अपने बातों को तहरीर की शक्ल में देकर लाया हूँ ताकि कम वक़्त में मतालिब आप लोगों के सामने रख सकूँ। सहाफ़त की अहमियत, ज़िम्मेदारी और किरदार मेरा मौजू है, लिहाजा आप सभी हाज़रीन से तवज्जो की उम्मीद है। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे की मुनासिबत पर आप तमाम हज़रात की खिदमत में तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। सहाफ़ी व सहाफ़त अरबी लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ सहीफ़ा से निकला है जिसके मानी किताब है, यानी सहीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इंसानी रहनुमाई के लिए नाजिल करदा किताब को कहते हैं। इस एतबार से सहाफ़त रहबरी व रहनुमाई वाला पेशा और सहाफ़ी एक रहबर व रहनुमा की कलीदी मनसब पर फाइज़ काबिल एहतराम शख्स होता है। सहाफ़ी हर वक़्त न सिर्फ सच बोलता है बल्कि सच के इजहार, अवामी रहनुमाई और सच्चाई के राह पर कायम रहने पर पेश आने वाली मुश्किलात का साबित कदमी से सामना भी करता है। सहाफ़ी इंसानी मसाइल के हल में अपने कलम को एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। सहाफ़त मुल्क के 4 बुनियादी सतून यानी मुक़न्नना, अदलिया और इंतज़ामिया में चौथा सतून माना जाता है। सहाफ़त या मीडिया एक वाहिद इदारा है जो फलाह व बहबूद और अवामी मसाइल के हल में अपना कलीदी किरदार अंजाम दे रहा है। अवामी नुमाइंदे और इंतज़ामिया तक समाजी मसाइल को पहुँचाने और इन्हें हल करवाने में ज़राए इब्लाग की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। सहाफ़त जिसे माशरे का चौथा सतून कहा गया है,
दर हकीकत देखा जाए तो ये बाकी 3 सुतून की सेहत व बरकरारी इसी चौथे सुतून की कारकर्दगी पर मुनहसर है। लोग सहाफ़त को जितना आसान समझ रहे हैं, दर हकीकत ये इतना आसान नहीं है। बिलखुसूस अहद हाजिर में जहाँ हर शय बिकाऊ बन चुकी है और माल बटोरना हर किसी का शेवा बन गया है। अल्लामा इकबाल ने क्या सच फरमाया, अल्लाह करे दौर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक़ के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर फितना। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि सहाफ़त की बागदौड़ बाकिरदार बाअखलाक बेबाक और हक़ गोई अफराद के हाथ में हों। इनका रास गो बेबाक हक़ और गैर जानबदारी होना ज़रूरी है। वो हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी ख़बर ही इशाअत करे, हमेशा मुस्बत अंदाज में सोचे और गैर जानिबदार रहे। लोगों में अफरा तफरी और सनसनी फैलाने के बजाय मनफी पहलुओं से भी मुस्बत पहलू निकाल कर अवाम के सामने पेश करे। ज़ाती मफाद पर मुल्की और कौमी मफाद को तरजीह दे, अवाम और हुकूमत के माबेन राबिता पुल का किरदार अदा करे और समाजी मसाइल को बरवक़्त उजागर करे। राजदारी का लिहाज रखा जाए, यानी किसी की ज़ाती मामले को टच न करे और अपनी सहाफ़त का मौजू न बनाए, बल्कि हिकमत अमली और दानाई से हर बुराई को मंजर आम पर लाए, माशरे की हर बुराई पर नज़र रखे और कभी किसी बात से गाफिल न रहे। सहाफ़ी बुनियादी तौर पर माशरे की आँख होता है। सहाफ़ी के बारे में कहा जाता है कि एक अच्छा सहाफ़ी हुक्मरानों और अवाम के दरमियान राबिता पुल का काम करता है। सहाफ़ी माशरे की उमंगों का तर्जुमान होता है। समाज सहाफ़ियों से सिर्फ़ कसीदा सराई का मुतालिबा नहीं करता, बल्कि ये सहाफ़ियों से मुस्बत तामीरी तनक़ीद का तलबगार है, जो एक अच्छे माशरे की तकमील व माउन हो। सहाफ़त माशरती नाहमवारियों को मिटाने में अपना हुस्न किरदार अदा करे, अपनी कलम और ख़बर के ज़रिए ज़ालिमों के ज़ालिमाना रवैयों को बयान करते हुए मज़लूमों के लिए सहाफ़ती जंग लड़े। ख़बर पर तहदीद आयद करने के बजाय सहाफ़ी मुल्क व कौम के मफाद को पेश नज़र रखते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। बेशक सहाफ़ी भी इसी मादी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी भी अपनी ज़िंदगी और मसाइल भी हैं जिनका हल बेहद ज़रूरी है। माशरे में बसने वाले हर फ़र्द के मसाइल जब तक हल नहीं होंगे, हम तो न तरक्की कर सकते हैं और न ही हमारी बुनियादी मसाइल हल हो पाएंगे। लिहाजा करील के सहाफ़ियों के कुछ अहम मसाइल हैं जिनको बाद में बयान किया जाएगा। लिहाजा सहाफ़ी के कलम से निकला हर हर्फ और ज़बान से निकला हर लफ्ज़ समाज का आईनादार होता है। सहाफ़ी सिर्फ़ हालात व वाक़यात को अपनी ख़बरों की जीनत नहीं बनाता, बल्कि वाक़यात के ज़ुहूर के असबाब और इसके सद्दबाब के लिए तजावीज़ भी पेश करता है और अरबाब इक़्तिदार को अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की जानिब मुतवज्जह करता है। सहाफ़ियों के ज़बान कलम से निकले हुए हर्फ व लफ्ज़ से जहाँ कौम की तक़दीर संवरती है, वहीं बिगाड़ और ख़राबी का एहतिमाल भी लगा रहता है। इसलिए सहाफ़ियों को हद दर्जा एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। सहाफ़त की ज़िम्मेदारियों को अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत समझकर इसे अहसन तरीक़े से अदा करें, ताकि रोज़ क़यामत अल्लाह के हुजूर शर्मिंदगी से बचा जा सके। सहाफ़ी कलम व ज़बान की अहमियत को समझें और इसकी हरमत व असमत का पास रखें और ख़्याल रखें कि जो भी ख़बर या बयान लिखें इसको गैर जानिबदारा अंदाज में मन व अन लिखें। ख़बर में अपनी मर्ज़ी और मफाद को शामिल न करें। कौम मिल्लत को आज सच्चे ईमानदार सहाफ़ियों की अशद ज़रूरत है। सच लिखें, सच पेश करें, मनफी ख़बरों के बजाय मुस्बत ख़बरों पर तवज्जो मरकूज़ करें और मुस्बत ख़बरों को अहमियत दें। सच कहना, हक़ लिखना किसी जहाद से कम नहीं है। सहाफ़ी कौम मिल्लत की फ़लाह व बहबूदी के लिए ख़ुद
इस पर जहाद को लाजिम करें। आज ज़रूरत इस अमर की है कि सहाफ़ी से वाबस्ता अफराद सहाफ़ती अक़दार व मयार को बरकरार रखने और इसकी तनज़्ज़ुली को रोकने के लिए ख़ुद एहतजाज से काम लें और इक़दाम करें। अब करगिल के कुछ सहाफ़ियों के चंद अहम मसाइल गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और ख़ासकर जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यूटी लद्दाख इम्तियाज़ काचो का दिल के अता गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमेशा मीडिया से वाबस्ता अफराद के मसाइल पर तवज्जो देकर हद्दुल मक़दूर इनका इज़ाला करने की कोशिश की है, जिसकी मिसाल मीडिया एक्रीडेशन और एमपैनल है। अलबत्ता आपसे गुजारिश है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता अफराद को मल्टी मीडिया एमपैनल की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 2 सालों से एमपैनल का प्रोसेस बंद है। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एमपैनल शुरू करके मुस्तक़ और माहिर अफराद को खिदमत का मौका दें। हम चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब डॉक्टर जाफ़र आख़ून व डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब सूसे का बहुत ही मशकूर हैं कि आपने प्रेस क्लब के लिए 16 मरला ज़मीन अलाट किया। ताहम ये ज़मीन बहुत कम है, हमारा मुतालिबा है कम से कम 1.5 कनाल ज़मीन अलाट किया जाए। और साथ ही कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से हमारी गुजारिश है कि जिस तरह लेह प्रेस क्लब की तामीर की गई है, इसी तरह करगिल प्रेस ऑफिस के तामीर के लिए भी स्पेशल फ़ंड रखा जाए, क्योंकि साबिक़ा कमिश्नर सेक्रेटरी मोहतरमा पद्मा आमो ने हमें यकीन दिलाया था कि अगर हिल काउंसिल आपको ज़मीन अलाट कर देंगे तो प्रेस क्लब की तामीर के लिए 3.5 करोड़ रुपये का फ़ंड मुख्तस रखा जाएगा। लिहाजा खुसूसी पैकेज के ज़रिए इस काम पर जल्द काम शुरू किया जाए। एक और मसला अहम यह है कि जिस तरह मुल्क के दूसरे यूटीज़ और रियासतों में मीडिया वेलफेयर स्कीम को लागू किया गया है, इसी तरह यह लद्दाख यूटी में भी मीडिया वेलफेयर स्कीम बनाया जाए, ताकि प्रेस से वाबस्ता लोगों के मुश्किलात आसानी हो। जिसके लिए 2 साल कबल प्रेस क्लब करगिल ने एक ड्राफ्ट तैयार करके जेडी इंफॉर्मेशन के हवाले किया था। लिहाजा इस जानिब ज़रूरी तवज्जो दी जाए ताकि लद्दाख के सहाफ़ियों के मसाइल का कुछ न कुछ इज़ाला हो। एक और अहम मुतालबा यह है कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट ज़िला हेडक्वार्टर से रोज़ाना सुबह शाम 40 से 50 किलोमीटर रोज़ाना अप डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से इनके वक़्त सरफ होने के साथ साथ पैसा भी बर्बाद हो रहा है। ख़ासकर सर्दियों के अयाम में ये मुश्किलात और भी बढ़ जाता है। लिहाजा इनके लिए सरकारी क्वार्टर का इंतज़ाम किया जाए। हमें उम्मीद है कि हिल काउंसिल करगिल, ज़िला इंतज़ामिया और यूटी इंतज़ामिया मीडिया लद्दाख के मीडिया से वाबस्ता अफराद के इन देरीना मसाइल के हल के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I quote a phrase from his speech, हक लिखना और सच कहना जिहाद से कम नहीं है. Now I request President Press Club of Ladakh, Mohammad Hussain Khalu, to say a few words of wisdom, please. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairman, Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Development Council, Kargil, Dr. Jaffar Akhund sir, Honorable Executive Councillor Information Engineer Pansoktashi sir, Worthy Deputy Commissioner Kargil, CEO LSDC Kargil, Shrikant Bala Sahab Suse sir, Worthy Joint Director Information UT Ladakh, Imtiaz Kachu sir, the very young and energetic Assistant Director Information Kargil, Raza Ali sir, staff members of DIPR, media colleagues from the press club and other distinguished guests, Assalamu alaikum, Jule, and a very warm welcome to you all. Today we gathered here to celebrate Press Day, a day that honors the dedication, strength, courage of journalists across the country. This was President Press Club Mohammad Hussain Khalu. Thanks for raising the issues of the media fraternity. Now I would like to invite Joint Director Information Imtiaz Kacho Sahab to express his views and opinions on this occasion of National Press Day. Thank you, Arvind. Shukriya. Good afternoon. नेशनल प्रेस डे 2024 के मौके पे आप सबको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऑनरेबल चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुंद साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इंजीनियर पंचोकटाशी साहब,
डिप्टी कमिश्नर कारगिल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LHDC कारगिल श्रीकांत बाला साहब सूसे साहब, और असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रज़ाली आबिदी साहब, लद्दाख प्रेस क्लब कारगिल के प्रेसिडेंट हुसैन खालू साहब, वाइस प्रेसिडेंट वज़ीर साहब, एडवाइज़र्स और प्रेस फ्रेटर्निटी के जितने भी मेहमान यहाँ आए हुए हैं, मेंबर आए हुए हैं, उन सबको सलाम, और हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के बाकी साथियों को, कॉलीग्स को गुड आफ्टरनून। आज के इस तकरीब का एक नेशनल प्रेस डे का एक थीम सेट किया गया है, चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। चेंजिंग नेचर तो सर आपने देख लिया, ये है, दिस इज़ द चेंज दैट वी आर सीइंग। ये हमारे होनहार मीडिया पर्सन्स जिन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हुए आज इस मकाम पे ये लोग पहुँचे हैं, इनके लिए तालियां तो बनती हैं और एक ज़ोरदार तालियां बनती है, क्योंकि जैसे कहा गया कि सच लिखना जिहाद से कम नहीं। अनवर साहब कोट कर रहे थे सैयद हाशिम साहब को, किसी जिहाद से भी कम नहीं जिहाद, यानी स्ट्रगल, बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद इस मकाम पे पहुँचे हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी एक आपके सामने दिख रही है। अब इन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि हम ना हम ब्लैकमेलर हैं, ना कोई झूठ बोल रहे हैं। पब्लिक की आवाज़ जो है अथॉरिटीज़ तक, अहदेदारान तक पहुंचाने के लिए हम जुटे हुए हैं, और इसका भी एक बहुत बड़ा रिस्क है सर, क्योंकि इनके इनकम का आप पूछें ही ना, क्योंकि हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं वो वाला है। जैसे सैयद हाशिम साहब ने बजा फरमाया कि एकोमोडेशन की शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ज़रूरत पड़ेगी। हम यही इशू ले करगिल दोनों में भी फेस करते हैं, प्रेस वालों की तरफ से कुछ ऐसे डिमांड्स आते रहते हैं। बेशक कुछ ऐसे मीडिया पर्सनस हैं जिनको अप डाउन करना पड़ता है, अपने गांव से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है, आना भी मुश्किल है, वापस जाना भी मुश्किल होता है। अपने स्टोरीज फाइल करके वापस जाते जाते तो घर पहुंचते हुए शायद घर वाले घर आने भी नहीं देते होंगे गांव में। ऐसी नौबत आ गई है, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है सर, 24/7 वाली ड्यूटी है, और पब्लिक के सामने भी एक क्या कहते हैं माउथ पीस बन के गवर्नमेंट के सामने एक इश्यूज़ पेश करना, ये भी आसान नहीं है, मजाक नहीं है। कुछ एक ऐसा भी टाइम था जब लोग बोलते थे क्या कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्यों आप इन चीज़ों में पड़े हुए हो, चलो चाय पीते हैं वगैरह वगैरह, छोड़ दो ये न्यूज़ क्यों फाइल कर रहे हो खामखा वगैरह वगैरह। अब लोगों ने भी, अथॉरिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जहाँ भी हैं, हर तरह, क्योंकि सिर्फ इशू रेज करना सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ही नहीं, सोसाइटी का भी, कुछ सोसाइटी में भी खामियां हैं, वो भी पब्लिक के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और हमारा प्रेस पूरे लद्दाख का बहुत अच्छा रोल एक निभा रही है सर, और पिछले कई सालों से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी हमारी कोशिश यही रही है कि इनकी फलाह व बहबूदी के लिए कुछ न कुछ इक़दाम उठाए जाएँ। रेगुलर बेसिस पे एम्पैनलमेंट, एक्रेडिटेशन और वेलफेयर स्कीम्स वगैरह वगैरह के लिए कुछ न कुछ कदम उठाते जाते हैं। वेलफेयर स्कीम भी है सर, इट्स ऑन द एनविल जिसे कहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत मरम्मत हो रही है, लिपापोती, पॉलिश वॉलिश करना, ये वो सारा कुछ हो रहा है। एक बढ़िया सा एक डॉक्यूमेंट आएगा तो फिर बाकी अथॉरिटीज़ के सामने पेश किया जाएगा। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं इनमें, तो जब तक ये सामने नहीं आता सर, तब तक एक ये इरादा भी है और फैसला भी किया हुआ है कि कोई भी, मान लीजिए ये ख़ासकर वेलफेयर वाला स्कीम जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल कोई इमरजेंसी आ जाए, उस दौरान कोई मदद की ज़रूरत हो, मॉनिटरी बेनिफिट, तो तब राइज होता है। तो ये फैसला ये हुआ था कि कोई भी केस आता है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफ़र करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग से एक स्कीम है सर, PIB का, तो उसमें भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो ठीक ठाक हैं। तो उस तरह का एक इरादा था। अभी कोई खुदा न खास्ता कोई केस तो आया नहीं, कोई अगर रेफ़र होता है तो वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये टेकअप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लद्दाख में ऐसा है, अब लद्दाख एक यूनिक टेरिटरी बन गया है, तो हमारे मीडिया वालों के लिए भी कुछ यूनिक वेलफेयर स्कीम वगैरह हो, तो उसके लिए भी जद्दोजहद जारी है, प्रोसेस में है बेशक। तो जब नोटिफाई होता है तब बताते चलेंगे, लेकिन उसके जब तक वो नहीं होता भी हमारा असिस्टेंस तो हमेशा रहता है, हमारा सपोर्ट सारा रहता है। एक्रेडिटेशन हुआ है सर, एम्पैनलमेंट न्यूज़पेपर्स के होते हैं, मीडिया पर्सनस एक्रेडिटेड होते हैं। जब गवर्नमेंट के कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के या कोई भी बड़े इवेंट्स होते हैं, तो उनमें शरीक होना, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए हमारा एक्रेडिटेशन का काम ही आ जाता है। तो जब भी कहीं बाहर भेजना होता है, डिप्यूट करना पड़ता है सर कहीं कवरेज के लिए, नेशनल फंक्शंस को अटेंड करने के लिए, तब भी फिर एक्रेडिटेड मीडिया पर्सनस को ही भेजते हैं हमें। और इस बात की खुशी ये भी है सर कि हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी में
हमारे बेटियों ने भी शिरकत करना और इस फील्ड में आना शुरू कर दिया हुआ है। वॉइस ऑफ लद्दाख में खातून थी, हमारे अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स, खासकर हकीमा बानो अली जैसे होनहार लोग आए हुए हैं। तो एक ये फील्ड, इस फील्ड को लड़कियों ने भी चुनना शुरू किया एज ए करियर, एज ए प्रोफेशन। बहुत अच्छी बात है। आज नेशनल प्रेस डे के दिन मुझे ये सब बोलते हुए फ़ख्र हो रही है कि ये इसको, इस मीडिया वाले काम को एक प्रोफेशन समझ के हर तबके से लोग आ रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आसान काम नहीं है क्योंकि रेम्यूनरेशन बहुत कम है, गाली गलौज ज़्यादा है, इज़्ज़त कम है और क्रिटिसिज्म ज़्यादा है। फिर भी उसको नज़र में रखते हुए भी हमारे मीडिया पर्सन जितने भी हैं, इन सब क्रिटिसिज्म्स को, गालियों को साइड में रख के अपना एक किरदार निभा रहे हैं सर। और आज के दिन इन सब को सल्यूट करने का, इनके लिए ताली बजाने का वक्त आ गया है। ताली बजाने के अलावा भी हमें ये भी ख्याल रखना है कि जितना भी हो सके इनका वेलफेयर, हम वेलफेयर का हम ख्याल रखें और डेली बेसिस पे भी कोई ना कोई इशू जब आता है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। ले करगिल में दोनों प्रेस क्लब से हैं सर हम, और ये लोग इनफैक्ट दोनों वदाबंद भी हैं और हम भी गुजारिश करते रहते हैं कि लद्दाख के ऊपर एक लद्दाख प्रेस क्लब बन जाए। प्रेसिडेंट करगिल का हो, वाइस प्रेसिडेंट ले का हो, मिक्स्ड हो कॉम्पोजिशन, तो आपकी आवाज़ और बुलंदी तक पहुँचेगी और मजबूत होकर पहुँचेगी। अब उस डायरेक्शन में भी कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और कोशिश ये भी होती है सर हमारी कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की लेक वाले और करगिल वाले मीडिया पर्सन सारे मिलजुल के इंटरमिंगल हो रहे हैं, इंटीग्रेशन जैसा हो जाए, मिलते रहें, अपने ख्यालों का इजहार करें और आखिर में यही साबित होता है कि सब इंसान ही हैं दोनों तरफ। तो एक यूनिटरी लेवल पे एक प्रेस क्लब हो तो आवाज़ नेशनल लेवल पे भी और उम्दा तरीके से मजबूती से पहुँचेगी, क्योंकि आपकी शिरकत आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के एक्टिविटीज़ में भी और पता नहीं क्या कि जितने भी फोरम्स हैं उनमें भी होनी चाहिए। यही नहीं कि हम लद्दाख में ही सीमित रहें। और कई पिछले कुछ महीनों में सर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का रोल भी बढ़ा है, नए नियुक्तियाँ हुई हैं, नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और हर लेवल पे असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया है, असिस्टेंट कैमरामैन भी ज्वाइन कर गए हैं, हमारे जितने आउटसोर्स स्टाफ हैं वो भी हैं, उनका भी सहारा सपोर्ट ज़बरदस्त रहा है क्योंकि एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यूटी लेवल की बात ही नहीं है। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं कि कवर करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत का भी इशू होता है सर। लेकिन ये सब हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी अहदेदार हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा निभा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है। एक हमारा एक सेल, मीडिया सेल है सर सेक्रेटरीट में भी, वो का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कवरेज के लिए, राजनिवास में अपना अलग मीडिया सेल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का रोल अब बढ़ता जा रहा है सर और हमारे बर्डन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चैलेंज हैं और बखूबी निभाना है क्योंकि एक ज़माने में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का हुलिया ही अलग था। इंप्रेशन यही कहते थे कि बस माइक सप्लाई करना है, पीए सिस्टम ये वो इधर उधर करना है सर। अब उससे बहुत आगे बढ़ गया है। रिसेंटली सर ऑनरेबल सीईसी साहब ने भी शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, उन्होंने हाँ बोला और उन्होंने एक 1 डे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल किया था हमने लेह में, वो उस इवेंट को चेयर किया सर। चेयरपर्सन थे, चीफ गेस्ट थे मैडम पद्माम, फॉर्मर कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे। लेकिन ऐसे ही मौक़ों पे अगर हौसला अफजाई करते रहें तो फिल्म मेकर्स का भी थोड़ा इजाला होता है, उनके वेलफेयर का भी उनको इनकरेजमेंट मिलती है। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने एक दिन पहले एक दिन छोड़ के 11 तारीख को एक हिमालयन राइटर्स कॉन्क्लेव रखा था सर। तो मैं कहने की बात यह है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बहुत सारे एक्टिविटीज़ में घुस चुकी है और ये नहीं कि वहीं रुकना है, आगे बढ़ के और सबके लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, मीडिया पर्सनस के लिए कोई ना कोई अच्छा काम करते रहें। अगले साल 2025 में सर हमने द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का 3rd एडिशन करना है सर, तो उसके लिए भी तैयारियाँ जारी हैं। तो ऐसे मतलब ये है कि हमारे होम ग्रोन इन हाउस फिल्म मेकर्स जितने भी हैं उनके लिए, इन हाउस होम ग्रोन मीडिया पर्सन जो आप सब हैं, आप सब के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा ही करते रहें। गवर्नमेंट के स्कीम्स लागू करें, आपको बाहर भेज के एक्सपोजर दिलवाएं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एक होता है सर, नवंबर में होना है। अनफॉर्चुनेटली हम नॉमिनेशन नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई नहीं कोई कम्युनिकेशन। लेकिन एक वक्त 2 साल पहले इसाक साहब गए थे गोवा, इन्होंने ऑनरेबल मिनिस्टर INB का इंटरव्यू लिया और जितने भी फिल्म मेकर्स वहाँ पार्टिसिपेंट थे उनके इंटरव्यूज़ लिए, तो एक्सपोजर होता है सर। और हम चाहते हैं बाहर के भी मीडिया पर्सनस आते रहें लद्दाख और इनको भी थोड़ा एक्सपोजर दें, वो भी लद्दाख को देखें, पता चले लद्दाख कितना खूबसूरत है। ले करगिल दोनों में वर्कशॉप्स होते हैं सर, जर्नलिस्ट वेलफेयर वर्कशॉप्स, और इनके
अप स्केलिंग के लिए, इनके स्किल ओरिएंटेशन के लिए कोई ना कोई वर्कशॉप होता रहता है सर। अब कोशिश यही रहेगी कि शायद नवंबर एंडिंग में या दिसंबर फर्स्ट वीक में एक वर्कशॉप हो, इस साल का शायद आखिरी हो, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, ये सिलसिला तो जारी रहता है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक कैलेंडर भी बना हुआ है सर, जिसके तहत हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते रहें, प्रेस वालों को इन्वॉल्व करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, लेकिन नेशनल प्रेस डे के इस मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for your encouraging words and your insight into resolving the issues of media fraternity. Now, I request the Wadi Deputy Commissioner and CEO LHDC Kargil, Shrikant Balasab Suse, to express few words of wisdom. आज के मीडिया डे के मौके पर चीफ गेस्ट ऑनरेबल सीसी साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे ऑनरेबल ईसी साहब, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, प्रेस क्लब कारगिल के प्रेसिडेंट, सारे मीडिया के साथी, आप सबको जुले सलाम, नमस्ते। ये मेरा शायद दूसरा है, पिछली बार भी हमने प्रेस डे शायद काउंसिल में सीसी साहब ने नया ज्वाइन किया था, तब किया था। तो मेरे दिमाग में आज आते हुए अभी खालू साहब भी पूछे थे कि आपका मन नहीं था शायद आने का। मैंने बोला ऐसा नहीं है, मैं सोच रहा था कि जो डिमांड रखे थे उसमें मैं जवाब क्या दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने वही पूछना है, इसलिए हमें बुलाया। तो पहले वाली चीज़ में तो मुझे खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीसी साहब ने इसमें हार भर दी और आपको लैंड मिल गई। प्रेस क्लब का जो लैंड का इशू बहुत बड़ा था आपका, मेरे आने से पहले भी बहुत टाइम से पेंडिंग था। तो बीच में इलेक्शन आया तो हम ऑर्डर कर नहीं पाए लोकसभा इलेक्शन के टाइम, तो आपका ऑर्डर भी रेडी था। कई बार आप लोग पूछने भी आते थे तो मैं दिखाता था कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हम कर देंगे, तो हमने कर भी दिया है। तो अब हमने हमारा काम तो कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन से और काउंसिल ने भी काम किया है। अब जिम्मेदारी है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, जल्दी से जल्दी इनका अगर बिल्डिंग बन जाए तो जो भी अभी इनका टेम्पररी सिस्टम चलता है, जैसे लेह में तो ऑलमोस्ट बन गया, बहुत अच्छा बिल्डिंग बना है, तो कारगिल में भी ज़रूर बनना चाहिए। तो डिपार्टमेंट से गुजारिश है, क्योंकि ये एसडीपी का है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैंडेट में नहीं है, तो ताकि इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि जल्दी से जल्दी उसको देखा जाए ताकि इसमें भी काम शुरू हो। जो मीडिया वेलफेयर के बारे में, स्कीम के बारे में भी बहुत सालों से डिस्कस हो रहा है कि उसमें एक स्कीम बन रही है, आपने भी कुछ ड्राफ्ट दिया बट कोई उसमें हो नहीं रहा है। तब तक के लिए हम मैं अपनी तरफ से रेड क्रॉस की तरफ से जो भी हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है, उसमें सारे जो प्रेस क्लब की मीडिया पर्सन है उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन हमारे रेड क्रॉस की तरफ से हम भरेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आपके लिए मैं बताना चाहूँगा। जैसे हमने उनके लिए भी किया, जो हमारे प्रोजेक्ट सांगड़ा में सफाई वर्कर्स है, सेम मैंने उनके लिए भी ये बताया था, उनके लिए भी हम वो चीज़ हम बियर करेंगे। आपके लिए भी ज़्यादा नहीं होता वो एनुअल सब्सक्रिप्शन, बट सबका मिला के हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जरूर उसको रेड क्रॉस के थ्रू आपका सब्सक्रिप्शन हम बियर करेंगे, ताकि खुदा न खास्ता जैसे बताया कि कुछ आया, कुछ इवेंचुअलिटी आई, मेडिकल का कुछ आया, तो कम से कम उसमें जितना भी गवर्नमेंट के स्कीम में बेनिफिट है वो आपको मिल पाए। तो ये मेरी तरफ से दो चीज़ें ही मैं बोलूँगा, क्योंकि यही आप मेरे से जानना चाहते हैं। फिर आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेष, बहुत अच्छा आप लोग काम करते हैं। हर एक की स्टोरीज हम देखते हैं सबके, क्योंकि स्टेटस में भी आती है तो सबके मोबाइल नंबर मेरे पे सेव रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप स्टोरी करते हैं कहीं नोटिस में नहीं आता, हर एक स्टोरी हमारे नोटिस पे आता है, सीसी साहब के नोटिस में आता है, ज़रूर हम उसमें काम करते हैं जो भी हमसे पॉसिबल है। कई टाइम ऐसा होता है कि कुछ बाहर भी होता है, कुछ कर भी नहीं सकते, इन लोगों की डिमांड्स तो अनलिमिटेड होती है, बट हमें जो भी हमारे रूल्स में होता है वो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि किया जाए। उसमें आप सबका बहुत अच्छा रोल है और बहुत अच्छी तरीके से कारगिल की मीडिया काम कर रही है। और मैं लास्ट टाइम भी एक पॉइंट मैंने बोला था, इसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है कि हमारे जितने भी स्कीम्स हो रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट अच्छे काम कर रहे हैं, उसको भी अच्छी तरीके से पब्लिक की सामने प्रोजेक्ट करना चाहिए। उसमें भी आप सबका रोल है। खामियां दिखाना भी बहुत इजी होता है, बट जो अच्छे काम होते हैं वो भी दिखाने ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ। तो मैं फिर से आप सबको मैं प्रेस डे पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और खालू साहब को भी कि मेरा मन ज़रूर था, बस मुझे बताना था कि क्या क्या चीज़ें भी करें। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. Media is a bridge between the government and the public, and they communicate. They work as a bridge to communicate each other's grievances and the good governance. Now I request the
Executive Councillor for Information, LSDC Kargil, Engineer Funsok Tashi, to express his views and opinions. Honorable Chairman, LSDC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Sahab, Vardi Deputy Commissioner Srikant Bala Sahab Suse Sahab, Joint Director Information Kacho Imtiaz Sahab, Assistant Director Information Raza Ali Abedi Sahab, Press Club Kargil Ladakh के President Hussain Khalo Sahab, Advisors, बाकी Executive Members, प्रेस क्लब के मेंबर्स और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हमारे साथियां, सबको जुले व सलाम। शायद पहली बार नेशनल प्रेस डे जो है ना के मौके पे आने का मौका मिला। शायद लास्ट ईयर भी किया था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जो भी हो, एक नेशनल लेवल के इवेंट हम लोग कारगिल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके लिए मेरी तरफ से रज़ा आबिदी जी और जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को बधाई हो, अप्रिशिएशन। जो भी इवेंट नेशनल लेवल का होता है वो हमें कारगिल में मनाना चाहिए, चाहे वो नेशनल माउंटेन डे हो, टूरिज्म डे हो और बहुत सारे, क्योंकि उनके माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिलता है। ये है किस लिए हम सब जानते हैं, ये डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर प्रोफेशंस। आप लोगों ने जो एक साल में किरदार निभाया है उसको याद करने का ये दिन है नेशनल प्रेस डे। प्रेस के बगैर जो है ना कोई भी एक्टिविटीज़ जो है ना लोगों तक नहीं पहुँचते, हम सब जानते हैं। और आप हमारा एक अंक है। हमने हमेशा कहीं भी कुछ एक्टिविटीज़ किया या कहीं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया या कहीं गया हो, हम हमेशा प्रेस के बगैर अपने आप को जो है ना एक अलग महसूस करते हैं। और जहाँ भी जाते हैं हम प्रेस वालों को अपनी गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आज तक रहा है। हिस्ट्री यही बताता है, आज तक अगर हिस्ट्री में कुछ आर्काइव्स रिपोजिटरी हुआ है वो आप लोगों के माध्यम से हुआ है, प्रेस के माध्यम से हुआ है। और आप लोग ऐसे लोग तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जो ना प्रेस या इस प्रोफेशन को ऐसे चुना है, और आप लोग एक सोसाइटी का बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल तबके के लोग हो। आप लोगों का कदम, आप लोगों का हुनर, आप लोगों का विजडम, नॉलेज जो है ना वो एक सोसाइटी को बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन देते हैं। जिस तरह अभी इन्होंने बताया, ये क्या बोलते हैं, जहाद है, सच बोलना और जहाद से कम नहीं है। तो एक ऐसा कंट्रीब्यूट आप लोग कर रहे हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैसे डीसी साहब ने बताया, ऐसा नहीं है कि हम एक एक बंदे को जो है ना हम अपना इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप लोगों के काम को आज तक हिस्ट्री नहीं करते आया है, हम नहीं। आज तक जो है जब से दुनिया वजूद में आया तब से जो है ना प्रेस वालों का या लिखा है जो भी लिखा उसमें है, तो अलग अलग मीडियम में अभी चेंज होता है। दुनिया की दस्तूर है, चेंज इज इनएविटेबल। अभी पहले लिखाई में होता था, फिर वॉइस में होता था, फिर वीडियो में होता था, अभी डिजिटल का मीडिया ज़माना आ गया। तो इस चेंजेस के साथ जो है ना आप लोग भी उसके साथ साथ तावन देते आए हैं। तो मुझे एक वो हो रहा है कि काफ़ी सालों से जो है प्रेस क्लब वगैरह हमारे काउंसिल में आते रहते थे, हमें ज़मीन दीजिए, हमें प्रेस क्लब बना के दीजिए, हमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कमरा ही दीजिए, ऐसे वक्त भी था। लेकिन आज खुशी की बात है कि काउंसिल और डीसी साहब की कोशिशों से जो है आप लोगों को ज़मीन का अलॉटमेंट हुआ है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि ज़मीन का अलॉटमेंट करना, मैंने एक चीज़ देखा अपने इस केरल में, सबसे मुश्किल वो जो है ज़मीन का अलॉटमेंट करना है ना सर। काम बनते हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें जो है ना ज़मीन का अलॉटमेंट जो है ना डीसी साहब भी कम करते हैं और कौंसल भी उसमें थोड़ा सा हटके रहते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट देना जो है बहुत बड़ी काम है। और ख़ासकर अभी यूटीआई आने के बाद तो जो है ना इसमें हाथ लगाना, जो आग में हाथ लगानी थी, उसी का एक वो बन गया है। इसलिए उसके बावजूद में ना आपके इंपॉर्टेंस को, आप लोगों की ज़रूरत को समझते हुए जो है ना इन्होंने आप लोगों के लिए ज़मीन दिया है। और बिल्डिंग बनाना तो इतना मुश्किल नहीं है, यूटीआई एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कदम उठाया है, मैडम कमिश्नर साहब ने आप लोगों को कमिटमेंट दिया है। अगर वो लोग नहीं होता है तो सीसी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, नेक्स्ट प्लान में जो है सीसी साहब के माध्यम से वो चीज़ें बन सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। और जिस तरीके के मुश्किलात आप लोगों ने हमारे सामने रखा, और हम ये रियलाइज़ करते हैं कि आप लोगों को जो है ना खासकर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो ठीक है, उनको तो गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हम खुद ये फील करते हैं कि इनका लाइवलीहुड कैसे चलता होगा, क्योंकि एक ऐसा चीज़ तो है ना, आजकल लोग जो है ना अपना वक्त देते हैं तो उसका इनकम सोर्स क्या आता है, उसमें लोग अकाउंटेबिलिटी करते हैं। लेकिन मीडिया जो फ्रेटर्निटी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हम बिल्कुल रियलाइज़ करते हैं कि आप लोगों का बहुत मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम है, बिल्कुल इनको एक्सटेंड करना चाहिए सर। और हमारा भी यही सोच है कि कैसे आप लोगों की मदद कर पाएँ। उस दिन आप लोग आए थे, मैंने एक सुझाव दिया था, और आज मैं डीसी साहब और सीसी साहब के बीच में यही सुझाव करना चाहता हूँ कि वन टाइम हम लोग जैसे स्टूडेंट को लैपटॉप देते हैं, कुछ लोगों को मोबाइल देते हैं, आप लोगों का एक
इक्विपमेंट हैं जो मोबाइल और लैपटॉप से चलाते हैं। अगर सीसी साहब और डीसी साहब एग्री करें तो अगले साल सब्सिडी में किसी स्कीम में हर जो जितने भी प्रेस क्लब के रजिस्टर्ड लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 30 होंगे, उनको एक एक लैपटॉप और एक कैमरा, अच्छा खासा वेल क्वालिटी कैमरा देगा। क्योंकि इनका काम इनके लिए तो है नहीं सर, इनका आपका काम जो है वो कम्युनिटी के लिए, वो हमारे गवर्नमेंट का एक पार्ट है आप लोगों को। तो ये एक्सटेंड करें, मुझे लगता है कि आप लोगों का थोड़ा बहुत वो हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। आप लोगों को अपने कमाई से जो है उसमें पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वेलफेयर अगर आपको एक्सटेंड कर पाए काउंसिल की तरफ से वन टाइम, तो उसमें सची साहब और डीसी साहब दोनों सोच सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं आप लोगों को जो है ना आज नेशनल प्रेस डे के मौके पे जो है ना आप लोगों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और यही यकीन दिलाता हूँ कि काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन सब आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं। और ख़ासकर आज के डेट में तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन काचो साहब, कोई नई बात नहीं है कि वो आप लोगों की मुश्किलात से आगा नहीं है, एक एक चीज़ का पता है। तो जहाँ हो जाए जिधर हो जाए वो भी आप लोगों के भलाई के लिए वो सोचेंगे, काम करेंगे। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे क्या करने की ज़रूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे तो आप लोगों का हमारा ये अंक है, जो भी हम करते हैं हर चीज़ में आप लोग को सेवा है। हमारे मीटिंग में जीसीएम में छोटे छोटे मीटिंग में आप लोगों को पता है हमारा काउंसिल में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सब कुछ आप लोगों को मालूम है कि हम अलग नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आप लोग हमसे अलग नहीं, यू आर वेरी मच एक्टिव पार्ट ऑफ दिस काउंसिल इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो हम रियलाइज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी एक न्यूज़ जैसे इन्होंने बताया, सारा कुछ आप लोग, हालत को ख़राब करना भी आप लोगों के हाथ में है, हालत को कंट्रोल करना भी आप लोगों के हाथ में है। अगर छोटे से न्यूज़ को ना स्पार्क नेगलेक्टेड बर्न द हाउस उसको इतना एग्जैजरेट करके बता देगा ना तो हालत ख़राब होने में भी देर नहीं लगता है कि नहीं। उन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वॉइस प्लस लोगों का वॉइस बने और हकीकत को पेश करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल को तावन देते हुए आप लोग आगे बढ़े और हम भी आप लोगों के साथ हैं। शुक्रिया इसी दिन के लिए फिर से मैं एक बार हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जितने भी एहलकार हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ये मौका आप और हमारे बीच में एक इंटरेक्शन है नेशनल प्रेस डे के दिन पे जो है ना आप लोगों की मुश्किलात और हमारे जो व्यूज़ है वो सुनने का ये मौका इन्होंने रखा। और उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड, जर्नलिज्म के रिलेटेड और ऐसा इवेंट होगा तो वो भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाए। थैंक यू जुले। Press Day is the day to celebrate your work, what you do for the whole year. Now is the time to listen to our chief guest of the occasion. I request Chairman and Chief Executive Councillor LHDC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Akhund to say a few words of kindness and wisdom. कौंसल में मेरे साथी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर इंफॉर्मेशन जनाब पंसोक्ताशी साहब और दी डिप्टी कमिश्नर सीईओ श्रीकांत जी, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन काचो इम्तियाज साहब, स्टैंड डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रज़ाक जी, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ सब बैठे हैं, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब हुसैन साहब यहाँ पे बैठे हैं, बाकी वाइस प्रेसिडेंट जितने भी मीडिया फैकल्टी है और DIPL के स्टाफ ऑफिसर्स और ऑफिशियल, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुले गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये प्रेस नेशनल प्रेस डे के मौके पे आप सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जैसे डी साहब ने बताया पिछले साल हमने जब हम कौंसिल में आए थे तो कुछ दिनों के बाद आपका ये प्रोग्राम हुआ था। तो उसमें जैसे कि डी साहब ने बताया आप लोगों का उस वक्त जो डिमांड था ज़मीन के अलाटमेंट को लेके, वो अल्लाह की फजल से वो हो गया। मगर उस वक्त आप लोगों ने कहा था फंड हमारे पास रेडी है, मुझे आज भी याद है फंड वहाँ पे आपके वहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ने बोला है फंड हमारे पास है, सिर्फ ज़मीन अलॉट करने का था, वो हमने कर दिया। फिर अभी तो पता नहीं फंड था भी कि नहीं था, उस वक्त कह रहा था फंड हमारे पास वहाँ पे है ले में। तो हम कोशिश करेंगे अगर आप दोनों
इम्तियाज़ साहब अगर वहाँ से नहीं होता है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे अपने कैपेक्स में वो कराने का, मगर हो सके तो वहाँ से करा दीजिए, क्योंकि हम ये वाला पैसे और कहीं पे खर्चा कर सकते हैं। तो आप लोगों का जैसे आपका जो वेलफेयर का प्रोग्राम्स का है, डिस साहब ने भी बताया, उसमें जो हमसे बन पाएगा। और डिस साहब मैंने बहुत सारे ये देखे कि इंश्योरेंस का होता है, इनके इंश्योरेंस जैसे बाथरूम का इंश्योरेंस होता है, तो कम से कम हम जो मीडिया के लोग हैं उनको इंश्योरेंस कर सकते हैं। उसका कहीं ना कहीं करके हम उनके जो साल का इंश्योरेंस का जो मिनिमम होता है वो हम उसमें भरने का अगर कोई हमें रास्ता देखे तो मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी देख लीजिएगा, ताकि ये कम से कम इंश्योर रहे। कहीं पे कुछ होता है तो अल्लाह ना करे, तो कम से कम उसका कुछ बेनिफिट मिले। बाकी जो मीडिया के आप लोग रोल अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव आप लोग, और मैंने पहले भी कहा है, पिछले साल भी बताया था, कंस्ट्रक्टिव आप लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी है हमें जगाने के लिए, या हमें ये थोड़ा सा करने के लिए। हो सकता है इंसान गलती इंसान से होता है, इंसान गलती का बंदा है, हमसे भी हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ चूक होता हो, और हम कोशिश करते हैं लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जब से मैं आया हूँ मैं कोशिश करता हूँ, और 100% तो होता नहीं, मगर कोशिश हर फील्ड में, चाहे ट्रांसफ़र का हो, चाहे किसी और चीज़ का, डेवलपमेंटल साइड का हो, उन सब में कोशिश करता हूँ सबको इक्वल थोड़ा शेयर मिले। बाकी जैसे आप लोगों ने 2-3 चीज़ का मैं बोलना चाहूँगा। सुर वैली रिसेंटली आप जानते हैं हमारे नेशनल ज्योग्राफी में वन ऑफ द बेस्ट 25 प्लेस इन द वर्ल्ड आ गया है। उसको आप लोगों ने अच्छा खासा ये किया, मगर और उसको हमें आपके प्रेस के मीडियम से और ज़्यादा हमें दुनिया में हमारे नेशनल लेवल पर पहुंचाने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आप लोग वक्तन फ़वक्तन उस पर काम करेंगे। जैसे मैंने बताया था ले में, उसके लिए मैंने हमारे जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से कहा था कि उसमें हम 10 लाख रुपया आपको फिल्म बनाने का वो उसका मॉडलिटीज़ प्लीज़ आप खुद बना दीजिए कि हमने किसको देना है किसको नहीं देना। और उसमें हमें थोड़ा सा हमारा रिस्ट्रिक्शंस है कि हम कुछ मशीनरी इक्विपमेंट या दूसरे लॉजिस्टिक वगैरह करके उसमें दे सकते हैं। डायरेक्ट उसको बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा, जैसे कि वो हमारा ये बता रहे थे प्राइवेट सेक्टर, उसमें थोड़ा मुश्किल है, मगर कोशिश करेंगे हम किसी तरीके से आपको टाइम में से वो पैसे देने का। बाकी मेरा ये चीज मानना है लास्ट पे कि हम सब फंडामेंटल राइट्स पे तो बहुत बात करते हैं। फंडामेंटल राइट ठीक है, आपको बोलना फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर मेरा कहने का ये मतलब है, मेहरबानी फंडामेंटल राइट, आप जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं ना, मेहरबानी करके फंडामेंटल ड्यूटीज का भी थोड़ा ख्याल रखिए। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी फिर एक बार मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिसके कायदर हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर बहुत कॉम्पिटेंट हमारे इम्तियाज काचो साहब कर रहे, और ये नोनो रजा अली आबदी मैं साहब ने कहा कि हमको एक अच्छा कॉम्पिटेंट अफसर होना चाहिए। जब इनका ये ट्रांसफर हो गए, आपके इंफॉर्मेशन अफसर ट्रांसफर होके चले गए, फिर डिस साहब, और हमने देखा कि हमें वो चीज थोड़ा रजा अली आबदी में नजर आया, तो मैंने भी कहा डिस साहब को कि हमें इसको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को करने के लिए एक एनर्जेटिक अफसर को, यंग एनर्जेटिक अफसर को चार्ज देना चाहिए। तो डिस साहब ने ये मांग के अल्लाह की वजह से रजा अली आबदी और आप पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो प्रेस क्लब में आप लोगों का, वो प्रेस क्लब के जितने मेंबर्स है, अब हम जानते हैं आप लोग लिमिटेड, आप लोगों का रिसोर्स है, कहीं आप मजबूर हो जाते हैं, मगर हम कोशिश करेंगे जहां पे हमसे बन पाए उसमें हम आप लोगों की मदद करें। और खासकर जो कंस्ट्रक्शन का जो आप लोगों का प्रेस क्लब का है, अगर वहां से नहीं होता है तो हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में रखने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। Moving towards the word of gratitude, I would request the Assistant Director Information Razali Abidi to facilitate our guests with the mementos. Kindly facilitate the Chairman and Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, Dr. Muhammad Jafar Ahmed.
Executive Councillor, LHDC Kargil, Engineer Funsok Tashi. Worthy Deputy Commissioner and CEO, LHDC Kargil, Shirkan Balasahab Suse. Joint Director Information, Imtiaz Kacho. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request our chief guest to facilitate the journalist with a token of love. Please present the guest. President Press Club Hussein Khalid. Ghulam Nabi Zia. Said Hashim Rizvi. Muhammad Ali Waziri. Muhammad Ishaq. Nurul Islam. Mansoor Ahmad. Nasir Zaidi. Feroz Khan Sahib. Muhammad Musa Tumaili. Muhammad Hasnain Ibadi. Muhammad Musa, Ladakh Express. Now the staffs of DIPR Kargil, Mansoor Peer, our editor. Nasir Aziz, our reporter. Tufail Ahmad, our reporter. Hakima Banu, our assistant cameraman. Feroz Hussain Lati, our cameraman. Mudassir Ahmad, our cameraman. Muzammil, our reporter. Muhammad Yusuf, our cameraman. Thank you. प्रेसिडेंट अमरदा की तरफ से जनाब डॉक्टर जाफर आफन साहब, जनाब डिप्टी कमिश्नर और जनाब टैशी, आप तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी मशहूरी के बावजूद भी यहाँ पर आज जो हमें नेशनल प्रेस डे पे यहाँ पर मौका दिया और हमें जो फैसिलिटेट किया, ये हमारे लिए नाकाबिल फरामोश एक मौका होगा। क्योंकि नेशनल प्रेस डे के बारे में जब हम मीडिया में पढ़ते थे, हमने इतना सुना था कि 1966 में एक 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है, लेकिन पता नहीं था। अब पिछले 3 साल से इसका लाभ जाता है जनाब से जेडी काचो साहब को कि आपने जो है ये इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। तो हमारी जो सारी मुश्किलात हैं वो हम इस मौके में बता सकते हैं। हमारी बहुत सी मुश्किलात हैं जिनका अजाला किया, लेकिन हम आज हमारी सारी मुश्किलात तो हमारे रिपोर्टर्स ने बताई नहीं। या तो वो लोग घबरा गए या डर गए, लेकिन मैं सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा। हमें कौशल साहब नहीं दे रही है, कौंसलर साहब नहीं दे रहे मीडिया वालों को। किस पर? प्रोटोकॉल पर। सिर्फ डॉक्टर साहब, मैं आपकी याद दहानी करूँ, आप याद करो जब बाबा कुम हमारी करगिल, जब कमर अली कंपनी चल रहा था, मैं अक्सर मीडिया में था। आज वो प्रोटोकॉल हमारे नहीं मिलता है। हमारे किसी भी कौंसलर की किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी भी मीडिया वाले को कोई नहीं पूछ, चाय तक नहीं पूछते हैं। सिर्फ एक आदमी है, तशी फुंसो। आप लोग
वह आदमी है जब जांसकर में हालात खराब थे मीडिया को घर में रखा, मीडिया को खिलाया, जहां भी जाते हैं सिवाय कौंसलर टैक्सी पंचों के हमारे साथ नहीं ले रहे। तो डीसी साहब की डायरेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हम हमेशा आपके साथ हैं, हमने हमेशा साथ दिया है, लेकिन आप सबों को डायरेक्ट किया जाए कि वो जो है मीडिया को जो है वो पूरा सपोर्ट नहीं दे रहे। कभी तो कहते हैं भाई आपको चाय खत्म हो गया, कभी कहते हैं आज हमारी मेहरबानी मीडिया का जो प्रोटोकॉल है वो बहाल किया जाए। कि वो 4 बातें मैं बता रहा हूं क्योंकि आप मुझे तो मैं माफी चाहूंगा खासकर ये जेडी साहब से। आप जब कश्मीर टाइम्स में थे, मैं ऊपर रिपोर्टर था, आज वो प्रोटोकॉल हमारे साथ नहीं है। कहीं साहब आपको पता है वो प्रोटोकॉल नहीं है। डॉक्टर साहब मेहरबानी हमारी इस प्रोटोकॉल को, क्योंकि हम काम करते हैं लफ ला करते हैं, हम कहीं प्लांट पे जाते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए। हाँ अगर 3 किलोमीटर से बाहर होता है हम फ्यूल ले लेते हैं, वो जो हमें जगह दे, लेकिन हम कहीं जाते हैं तो हमें हमारे प्रोटोकॉल को ख्याल रखा जाए। बाकी करगिल की मीडिया ने हमेशा साथ दिया है। जैसे डॉक्टर साहब हमने आपके ग्रीवेंस रखा, आपने अभी सब क्लियर कर दिया, हम खुश हो गए। हम जब भी अभी डिस्ट्रिक्ट में से कोई स्कीम होती है हम सबसे पहले उसको खोल सके। हम हमेशा आपके साथ देंगे, साथ रहेंगे, लेकिन हमारी इस प्रोटोकॉल का इन फ्यूचर के लिए ख्याल रखा जाए। बाकी एक बात आप सबों का मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। डिपार्टमेंट के बिहाफ पे मैं वर्ड ऑफ थैंक्स देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज के चीफ गेस्ट CC LHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब का, इंजीनियर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC कारगिल इंजीनियर फंसोक काशी साहब का, और CEO और डिप्टी कमिश्नर कारगिल श्रीकांत बाला साहब का, ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन काजू इम्तियाज साहब का, और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रजाली आदिनी साहब का कि उनकी मशक्क़त और उनकी कोशिशों से ये प्रोग्राम बरगुजार हो पाया, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस क्लब के सारे मेंबर्स का, जितने भी दूसरे जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे तशरीफ लाए। और आखिर में DIPR कारगिल के सारे स्टाफ का कि आप सभी ने कोशिश किया, 2 दिन मशक्क़त किया और इस नेशनल प्रेस डे को बरगुजार करने में आप लोगों ने कलेजी रोल अदा किया। पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा वज़ीर साहब आप सबको नेशनल प्रेस डे के मौके पे। और यही एक दिन आता है जब हम असल में आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए आपको चाय पे बुलाते हैं और आपके मसलों को का हल करने के लिए आपकी बातें सुनते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमारे और आपके इंटरेक्शंस ख़त्म नहीं होंगे, हुए भी नहीं है अभी तक। लेकिन यह है कि चैलेंजिंग टाइम्स हैं। प्रेस का आज का नेशनल प्रेस डे का भी एक थीम है चेंजिंग प्रेस करके, चेंजिंग मीडिया। बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है, आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एक गरीब आदमी की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके अलावा भी समाज में जितने भी इश्यूज हैं, सिचुएशन से इल्स हैं जिसे कहते हैं, उनको अभी लोगों के सामने ला के उन्हीं की आंखें खोलना भी बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ तो है ही। लेकिन हमें अंदाज़ा ये भी है कि आपको कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जिया साहब ने अपने वर्ड ऑफ थैंक्स में और स्पीचेस में जताया कि बताया कि आपके क्या क्या इश्यूज अब भी पेंडिंग है और क्या क्या आगे किया जा सकता है, वो हमने नोट किए हैं। वो तो हमारे आपके साथ इंटरेक्शन हमेशा जब भी रहती है तब भी ये सामने आ जाते हैं। लेकिन इन सब का इजाला करने के करके हमारा फ़र्ज भी तो बनता है। बेशक अब अपने ऑनरेबल CC, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और DC साहब ने भी इजहार किया और एक्सेप्ट भी किया। बेशक आपका रोल बहुत उम्दा है सोसाइटी में, आपके बगैर हमें पब्लिक के ग्रीवेंसेस के बारे में पता नहीं चलता। और किसी कोई आम आदमी अगर हो, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक नहीं पहुंच पाता, उसकी आवाज़ भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक आप ही ले आते हैं। सोशल मीडिया के जरिए, अपने मीडिया चैनल्स जितने भी सारे हैं उन सब के जरिए लाना पड़ता है। उसके लिए शुक्रिया अदा तो आप लोगों का हम करते ही हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में एक चैलेंज आपके सामने ये भी आया हुआ है कि एक न्यू मीडिया नाम का एक कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है। उसमें ऐसा भी लगता है कि घर बैठे भी कोई बैठे बैठे यूट्यूब चैनल पे अपना न्यूज़ चला देता है। और ऑथेंटिसिटी, तो उस पर ऑथेंटिसिटी का एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी होता है। और लोग जैसे भी आजकल आपको पता भी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत बढ़िया बनी हुई है, उस पर फॉरवर्ड किया जाता है और लोग यकीन भी कर लेते हैं बिना corroborate किए हुए, बिना सब्सटेंशिएट किए हुए। इससे जैसे पुंसोक साहब ने सही फरमाया कि एक चिंगारी ही काफ़ी है माहौल ख़राब करने वाले, और इसमें आपका ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिंगारी नहीं लगने देना है। और आपके एक न्यूज़ आइटम से ही कितनी आग लग सकती है हमें सबको अंदाज़ा है। लेकिन अभी तक आपने बखूबी निभाया अपना रोल, और सैल्यूट तो हमेशा आपको करता रहता हूँ, क्योंकि हमें पता है रेम्यूनरेशन बहुत कम है, लेकिन मेहनत है 24 घंटे का। 24 घंटे के अलावा अगर 20-30 घंटे भी दिन में होते हो आप, 30 घंटे शायद काम करते हुए दिखते हैं हमें। तो अब हमें उम्मीद ये भी कि आप बहुत सारे, जैसे आप कर रहे हैं खुद ही, बहुत सारे इंटरनेशनल
मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज को रिप्रेजेंट आप लोग करें करगिल में, लेह में बैठ के, और लद्दाख की पूरे अवाम की आवाज़ पूरे दुनिया भर तक पहुंचाएं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो आपके साथ वादा बंद है कि जितना हो सके हम आपके इश्यूज मसाइल को हल करने की कोशिश करते रहें, लेकिन आपके साथ हैंड होल्डिंग करके शाना बशाना साथ चलते हुए एक गवर्नमेंट के जितने भी अच्छे एक्टिविटीज इनिशिएटिव्स हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, दोनों LHDCs के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी पब्लिक तक अच्छे काम दिखाएं, उनको पता चले कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कितने अच्छे काम हो रहे हैं। जी। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.